Hello student, so welcome to our YouTube channel, that is Explore Learning Center. In the yesterday video, okay, so we have discussed regarding the what electric field, and this is one of the important property of the charge. Okay, so unlike wherever there is a mass, there is a what gravitational field or gravitational force, and wherever there is a magnetic material, around the magnetic material you have magnetic field. Similarly, around the charge there is always electric field. Okay, and then what is the electric field? We have discussed the unit of the electric field, that is Newton per coulomb, and another unit of the electric field is volt per meter. Okay, so electric field is nothing but the around the charge there is what invisible thing which exerts the force on the what other charged body or uncharged body. Okay, so now and the definition of the electric field is nothing but the force per unit charge, for force per unit charge. Okay, and then we have derived the expression for the what electric field due to a single charge. Okay, and the single charge, that means electric field due to this positive charge or negative charge, maybe any charge at a certain distance, at a distance of r. So what is the electric field at p point? Okay, and that expression is given by the what E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. So by knowing the only r, you can find out the what due to any charge at certain distance around the charge, what is the total electric field. Okay, so now I will show you one you can say it is made how the electric field actually it is. Okay, and yesterday we have seen the electric field due to a positive charge, electric field due to a negative charge. So electric field due to a positive charge, it is always outward, radially outward, and electric field due to a negative charge, it is radially inward. So remember these two equation. Okay, so positive charge means what? When the q is greater than 0 always. Okay, and negative charge means what? When the q is less than 0. Sometimes they ask. Okay, so here is the, you can say, the diagram. Okay, so you can see here. So if this is a positive charge, suppose this is a positive charge, then electric field lines will be emerges out radially. ओके मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आते हैं ऐसे, ठीक है, आप देख सकते हो हर जगह से बाहर आते हैं, हर जगह से बाहर आते हैं. अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे, अगर ये बॉडी नेगेटिव है तो ये इनवर्ड पॉइंट करेंगे. ओके, सो आपको एक मतलब आपको एक फील आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होते कैसे. सो ये हर बॉडी अगर ऐसे सर्कल में है, स्फीयर में है, तो वो उस बॉडी से बाहर की तरफ ऐसे हर एक जगह से निकलेंगी. ऐसा नहीं कि ये जैसे मैंने दिखाया कि सिर्फ ऐसे निकलते हैं, तो ये यहाँ पे भी 3D डायग्राम दिखा नहीं सकता ना. ओके, सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द वर्ड और चार्ज. अगर ये पॉजिटिव है तो ये सारे लाइंस, सारे फील्ड लाइंस ये बाहर आते और ये लाइंस है, ठीक है. तो ये माचिस की तीलियाँ है, लेकिन इसको हमने क्या कंसिडर किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, सो ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलती है अगर पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव है तो ये फील्ड लाइंस नेगेटिव ऐसे अंदर की तरफ जाती है. ओके, इनवर्ड. ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, मतलब एक दिखने में ऑलमोस्ट कोरोना वायरस की तरह दिखता है. ओके, बट नॉट, इट इज नॉट अ कोरोना वायरस. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द चार्ज बॉडी. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट next we will see electric field lines, how the electric field lines are represented around the you can say charge body, the what charge body. Okay, so first we will see around the single positive charge. Okay, around the single positive charge, that means what? Q is greater than 0. Around the single negative charge, Q is less than 0. Okay, and two equal charges, maybe positive positive, negative negative, and the two unequal charges, one is positive, another is negative. Okay, so for the first two the diagram is already drawn here. So yes, this is what the diagram, and this is the another diagram, correct? Okay, so this is Q is greater than 0, positive charge, and Q is less than 0, that is a negative charge. Okay, now I will draw the next two, the electric field lines for the what? Two equal charges and two unequal charges. Okay, so let me, okay, so now we will discuss the electric field due to two equal charges. Due to what? Two equal charges. Okay, so two equal charges means what? Positive positive or negative negative, and we know two equal charges, that is the third one. Okay, so I will take the third one, that is two equal charges. Two equal charges. Okay, so how these electric field lines are represented? Okay, so I will draw here the positive charge, and then another one is what? Positive charge, correct? Okay, now positive charge and positive charge, what they will do? They will repel. Okay, that means what? The electric field lines emerges out, but due to the repulsion, electric field lines will be represented in this format. Okay, so here the electric field lines will move in this direction, electric field lines will move in this direction, and from here also electric field lines move here
and this is what the electric field lines you can see here. Okay, so all the electric field lines are repelling each other. All the electric field lines are repelling each other. So these diagrams ask for 3 marks. So it is outward because it is positively charged, and electric field lines is always out from the what? Positive charge. Okay, and here also it is out. Okay, so this is the things. Okay, so positive charge. Okay, so you can see here these are the what? Electric field line. Okay, so repulsion, that means in between them electric field is almost zero. No electric field lines are here. Okay, so positive positive. Now if it is suppose negative and negative, so what will happen? You will get the same diagram, but this arrow must be pointed inward, and arrow must be pointed what? Inward. Okay, so this is what the two equal charges. So remember the diagram. Okay, now the next diagram is between the, that is between the what? Unequal charges. Between the unequal charges. Okay, unequal charges means what? One is positive, another is negative. So I will draw here, one is positive charge, another is a negative charge, Okay, so electric field length starts with positive, ends at negative. Electric field length starts with positive, ends at negative. That means emerges out, end. Okay, so this is the diagram. That's why the positive and negative attract. Okay, so this is the what? Another lines. These lines also meet here, somewhere here. Okay, so I will draw here. Okay, so okay, now, and there is another name for the two unequal charges. That means if the system consists one positive charge and negative charge, if it is plus q, then it becomes minus q. Then this system has a new name. It is known as dipole. Electric dipole. It is electric dipole. Okay, why electric dipole? Because it is made up of two charges, equal but opposite. Okay, so suppose if it is plus q and if it is minus 3q, then that cannot be called as a dipole, because both are not having the same dimension, same magnitude. अगर ये प्लस 2 कूलम है तो ये भी माइनस 2 कूलम होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, तभी इसको हम डाइपोल बोलते हैं. डाई मीन्स टू, पोल मीन्स टू पोलैरिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सिमिलरली मैग्नेट का भी ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है. करेक्ट. ओके, हाँ, तो इसको हम मैग्नेटिक पोल बोलते हैं, क्योंकि इसका भी जो स्ट्रेंथ है सेम इसका भी स्ट्रेंथ है. ठीक है, सो इसको मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं, और ऐसे को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डायपोल. अराउंड द डायपोल दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, सो रिमेंबर ये तीनों डायग्राम्स आपको याद रखने हैं. क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, क्यू इज लेस देन जीरो. ठीक है, उनके डायग्राम्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं. क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, क्यू इज लेस देन जीरो. ओके, और ये टू इक्वल चार्जेस है और ये डायपोल. 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं. ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द व्हाट? क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, क्यू इज लेस देन जीरो, या तो इन दोनों में से एक पूछते हैं 3 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो प्रॉपरली ड्रॉ करो डायग्राम्स. ठीक है, ऐसे भी कैसे वैसे मत निकालो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे स्मूथ कर्व निकालने में. ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज होते हैं. और ये जो क्वेश्चन है ये भी 3 मार्क्स के लिए आता है. ओके, सो 3 मार्क्स के लिए मतलब राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always starts with पॉजिटिव चार्ज. ये एक प्रॉपर्टी है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती है. एमर्जेस आउट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एमर्जेस आउट. पॉजिटिव बॉडी से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आते हैं. ठीक है, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एंड्स, और यू कैन से टर्मिनेट मतलब खत्म, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. ओके, टर्मिनेट और एंड्स एट नेगेटिव चार्ज. ओके, सो नाउ थर्ड वन. ओके, जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड हो रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे बाहर जा रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वन यू हैव ओके, कौन से भी 3 लिखना है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
always emerges out or terminate मतलब ends or terminates, okay, perpendicular to the body, terminates perpendicular to the body, perpendicular to the what? A body, correct, okay. So make it little bit bright, समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये मान लो ये बॉडी है, मे बी पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं ना, वो हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर ही निकलते हैं। ये जो सरफेस है इससे परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है ऐसे परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, लेकिन हमेशा ये परपेंडिकुलर ही बनाते हैं, ठीक है। इस बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि वो 90 डिग्री नहीं बनाते, करेक्ट, ओके। सो दिस इज द यू कैन से मीनिंग ऑफ दिस, ओके, ऑलवेज एमर्जेस परपेंडिकुलर, ओके। जैसे ये मान लो बॉडी है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये सरफेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, ऐसे बाहर निकलेंगी, ठीक है। यहाँ से ऐसे या फिर ऐसे नहीं निकलेंगी, क्योंकि वो सरफेस से 90 डिग्री नहीं बनाती है, ओके। सो ऑलवेज एमर्जेस परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे भी अगर निकालनी है इस पॉइंट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जाएंगी, क्योंकि ये इसने 90 डिग्री बनाया है, करेक्ट, ओके। सो जैसे बाहर 90 डिग्री आती है ना, तो मान लो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो वैसे ही अंदर 90 डिग्री करके टर्मिनेट होती है, ठीक है, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ओके। और थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, यहाँ पे एंड होगी। मान लो दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे करके ऐसे एंड होगी, नहीं, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इलेक्ट्रिक, इन दोनों ने यहाँ पे क्रॉस किया है, सो ये क्रॉसिंग होता नहीं बिल्कुल, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेपरेट जाती है। मान लो इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में हज़ारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो हज़ारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सेपरेट ही जाएगी विदाउट क्रॉसिंग ईच अदर, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ओके। एंड फिफ्थ वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं फॉर्म करती, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे एंड होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स एट नेगेटिव और ख़त्म, ठीक है। यहाँ से वापस वो नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जाती, ठीक है। सो जैसे स्टार्ट खत्म, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती है, मतलब लूप फॉर्म कर नहीं करते, लूप मतलब सर्कुलर लूप फॉर्म नहीं करते, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। फर्क क्या है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, जहाँ पे स्टार्ट हुई है एक बार खत्म हुआ है तो वापस नहीं आती। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, ये अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, और ऐसे चली जाती है साउथ की तरफ और एंड होती है, वापस वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो इन्होंने देखा, इसने एक लूप फॉर्म किया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ओके। सो ये एक 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, पाँचों में से 3 कौन से भी लिख दो, आपको 3 मार्क मिलेंगे, ओके। सो सिंपल है, जैसे ये एक है और इन दोनों में से कोई तो एक लिख दो, अगर ये आपको टफ पड़ रहा है तो, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे कोई भी बॉडी है तो वो उस बॉडी में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर करके ही बाहर निकलती है, ठीक है। ऐसे कोई भी एंगल से बाहर नहीं निकलती, ठीक है। जैसे बाहर निकलती है वैसे ही एंड होती है, ओके। सो दिस इज व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो रिमेंबर, ओके। देन अगर मान लो एक प्लेट्स है ऐसे और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट अगर पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। हाँ, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके बीच में ऐसे पैरेलल अगर कंडक्टर है पॉजिटिव, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही आती है और वो हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होती है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स एट नेगेटिव, लेकिन ऐसे पैरेलल में, कैसे, ऐसे पैरेलल में, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं तो एक पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे कहीं तो एक नेगेटिव प्लेट है, करेक्ट, ओके। सो दिस इज द थिंग्स, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज
जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, और ये गया आगे, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके ऐसे क्लोज होने लगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे नज़दीक आने लगे ऐसे मान लो, ठीक है, ओके, डायरेक्शन तो सेम ही है, ये डायरेक्शन ऐसी ही है, ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में जो स्पेसिंग है, डिस्टेंस है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है, ओके, सो यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स आर मोर, ठीक है, यहाँ पे दो लाइन्स के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर यू कैन से आर लेस, यहाँ पे नज़दीक है, ठीक है, हाँ, तो इससे क्या पता चलता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है वो रीजन वीक है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है वहाँ पे क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बहुत नज़दीक होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैंने कोई चार्ज रखा तो उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, वही चार्ज अगर मैंने यहाँ पे रखा तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मोर है, ठीक है, सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब नीट या फिर JEE CET में आपको हेल्प करेगी, ठीक है, सो ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, अगर बोर्ड में पूछा 3 मार्क्स के लिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो आप इन पाँचों में से आप कौन से भी 3 लिख दो, ठीक है, डायग्राम नेसेसरी नहीं है, सिर्फ लाइन्स लिख दो चलेगा, ओके, सो समझ में आ गया, जहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कम होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे क्लोज है वहाँ पे उसकी ताकत क्या होती है, ज़्यादा होती है, ओके, सो दिस इज द यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर इज द सम डायग्राम्स, ओके, यू हैव टू पॉइंट आउट विच डायग्राम इज करेक्ट, विच डायग्राम हैज़ अ फॉल्ट, मतलब इनमें गलतियाँ क्या है आपको पॉइंट आउट करना है, ठीक है, ये डायग्राम बॉडीज़ है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने दिखाई है, करेक्ट, ओके, सो नाउ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ, ओके, कौन सा डायग्राम इनसे गलत है, पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम विच शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ओके, अच्छा चलो, तो आप पॉज करो पहले, ठीक है, और आप पॉइंट आउट करो कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है और क्यों रॉन्ग है, ओके, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन, ओके, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गया एंड हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया एंड हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गया इसके पास एंड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पास एंड, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये भी आ रहा है, और ये पॉजिटिव है तो जा रहा है बाहर, ये भी पॉजिटिव जा रहा है, मतलब सब है, डायरेक्शन वगैरह सब सेम है, लेकिन यहाँ पे एक गलती है, क्या गलती है, ये देखो, इसका दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्रॉसिंग एट दिस पॉइंट, ओके, तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, सो दिस इज व्हाट द रॉन्ग डायग्राम, ठीक है, ये दोनों क्रॉस नहीं होते कभी, ठीक है, सो दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज अ रॉन्ग एंड द रीजन इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, बट हियर क्रॉसिंग हुआ है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, अब देखो ये दूसरा डायग्राम, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकला, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकला, एंड हुआ, ठीक है, हाँ, यहाँ तक तो करेक्ट है, ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकली है, एंड हुई है, बाहर निकली है, एंड हुई, हाँ, यहाँ पे गलत है, क्यों, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर नहीं निकलती, वहाँ अंदर रहती है, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर नहीं आती है, वहाँ से बाहर निकलती है, ओके, सो ये थोड़ा सा गलत है, ओके, नो, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ओके, पॉजिटिव स्टार्ट हुआ एंड हुआ, पॉजिटिव स्टार्ट हुआ एंड हुआ, अब देखो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ एंड हुआ, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ एंड हुआ, ये गलत है, इन्होंने एक लूप फॉर्म किया है, पॉजिटिव एंड हुआ फिर शुरुआत हुआ फिर एंड हुआ, एक लूप बन गया है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, मतलब ये ऐसे लूप फॉर्म नहीं करती है, एक बार स्टार्ट हुआ तो एंड खत्म, वापस वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं जाती, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में, ओके, सो यहाँ पे देखो अब इस बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से बाहर निकलेंगे, ठीक है, फिर भी इसमें गलती है, क्यों, ठीक है, देखो ये सरफेस है ना, ये सरफेस पे इस लाइन ने इस सरफेस के साथ एंगल 90 डिग्री नहीं बनाया है, कुछ तो और बनाया है, ये देखो हर एक लाइन फील्ड लाइन 90 डिग्री बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हाँ, अगर आप ये कंसिडर करो ये वाली लाइन, हाँ, तो इसने एग्जैक्टली 90 डिग्री करके बाहर निकला है, मतलब ये लाइन सिर्फ
करेक्ट है, ठीक है। और बाकी देखो ये 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है सरफेस से, ये भी 90 डिग्री बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ ये हो सकती है 90 डिग्री, करेक्ट, ओके। हाँ ये भी थोड़ा बहुत हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये इसने थीटा एंगल 90 डिग्री बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे नहीं निकलेगी, वो एचओ ऐसे निकलेगी, इट मेक्स 90 डिग्री, ओके। हाँ तो ये भी डायग्राम क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि बाकी सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लोग क्या बनाया है, 90 डिग्री नहीं बनाया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, करेक्ट, ओके। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स एंड स्टार्ट्स एंड स्टार्ट्स एंड स्टार्ट्स एंड, सब ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बीच बीच में कट हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज अ कंटिन्यूअस, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंटिन्यूअस होती है, ऐसे डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, बीच बीच में ब्रेक नहीं होती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे नहीं में स्मूथ कर्व होती है, कुछ भी हो लेकिन स्मूथ कर्व, ऐसे बीच में फिर कट, बीच में फिर कट, ऐसे नहीं होती, ठीक है। सो ऑल द डायग्राम्स आर कंप्लीटली रॉन्ग, सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज यू कैन जस्ट जज इट, ओके। सो नेक्स्ट, so these are the some properties of the electric field lines, okay. So now next we will try to solve some important numericals on this, okay. Now अनलाइक कूलम्ब्स लॉ, जहाँ पे हमने फोर्स निकाला था मल्टीपल चार्जेस की वजह से बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके, बाय यूजिंग द व्हाट, वेक्टर्स एडिशन लॉ। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो हियर इज आल्सो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, ओके। तो ये क्या बोलता है कि एक मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नथिंग बट द सम, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, यू कैन से सिंगल चार्ज, ओके। तो वो डेफिनेशन सेम ही है जैसे हमने पिछले कूलम्ब्स लॉ में देखा था, तो वो थोड़ा सा आप डेफिनेशन देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, अगर एक मान लो सिंगल चार्ज है पॉजिटिव, इसकी वजह से एक डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो वो इक्वेशन देगा आपको इज इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0 Q बाय आर, ओके। Q मतलब इसकी स्ट्रेंथ, ओके। नाउ सपोज तो ये सिंगल चार्ज की वजह से इसके अराउंड कहीं भी आप आर डिस्टेंस पे ये इक्वेशन लेके आप निकाल सकते हो, करेक्ट, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ओके। सो ड्यू टू अ डायपोल एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द एक्सिस। अच्छा, डायपोल मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, मे भी यहाँ पे सेम चार्ज होगा या फिर डिफरेंट चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो हम डिफरेंट चार्ज लेंगे। तो ये चार्ज मान लो Q1 है, Q2 है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये लाइन एक्सिस है, उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो मैं वो पॉइंट P यहाँ पे उन दोनों के बीच में कहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड होती है, तो ये आउटवर्ड गया, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से Q1 की वजह से आई विल मेक इट E1, ओके। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड नहीं होता है, ठीक है, इनवर्ड ही होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड होता है और पॉजिटिव की तरफ से यहाँ पे आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऐसे इस तरफ ही होगा, उसकी तरफ ही होगा। तो ये मान लो E2 है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब E1 E2 दोनों सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट व्हाट, E1 प्लस E2, ओके। E1 किसकी वजह से है, Q1 की वजह से है, ठीक है। और E2 किसकी वजह से है, Q2 की वजह से है। तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाय, अच्छा, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो R1 है और यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो R2 है, तो ये R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0 Q2 डिवाइड बाय R2 द होल स्क्वायर, जो भी है डिस्टेंस उस चार्ज से उस पॉइंट तक, वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों सेम पॉइंट करें इसलिए सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, सेम पॉइंट, चार्ज तो सेम ही है, लेकिन ये पॉइंट अगर नेगेटिव चार्ज की इस तरफ रहा तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है ना, उसकी तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगी। सो दिस इज व्हाट E1 और ये E2 है, करेक्ट, E1 और E2 है, करेक्ट, ओके। नाउ देयरफॉर यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द व्हाट, अच्छा,
E2 और E1 दोनों सेम डायरेक्शन में, तब हम ऐड करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में तब क्या करते हैं हम लोग, बड़ा वाला वेक्टर और माइनस छोटा वाला वेक्टर। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये डिस्टेंस कम है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ E2 माइनस E1 करते हैं, E2 माइनस E1। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द E2 माइनस E1। E2 ये होता है, E1 ये होता है। ठीक है, वहाँ से लेके ये डिस्टेंस और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ये मान लो R2 है, तो यहाँ से लेके उस पॉइंट तक ये डिस्टेंस होता है R1। ठीक है, जो भी डिस्टेंस है आपको वो लेना है। ठीक है, अच्छा सिमिलरली देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यह नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है, किसकी वजह से, इनकी वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द व्हाट, E1 माइनस E2 होगा। अब E1 माइनस E2 क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जिस चार्ज के नज़दीक होता है वहाँ, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होती है। और तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से बहुत दूर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नज़दीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, मतलब E1 ज़्यादा है और E2 यहाँ पे कम है। तो E1 माइनस E2 करते हैं, तो ये आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। करेक्ट, ओके। सिमिलरली अगर मान लो दो इक्वल चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, सो जैसे ये पॉजिटिव है, ये अलोंग द लाइन एक्सिस है, एंड योर पॉइंट इज P, आपका ये पॉइंट P है दो चार्जेस के बीच में, वेयर यू वांट विश टू फाइंड आउट व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेंगे E1, क्योंकि ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड ही होगी ना, तो ये E2 है। करेक्ट, ओके। तो जैसे मान लो इसमें सब कोई भी बड़ा हो, ठीक है, अब अपोजिट है दोनों भी, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट तो व्हाट, E1 माइनस E2। ठीक है, अच्छा नॉट ऑलवेज E1 माइनस E2, जो बड़ा है कैलकुलेशन के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी ना, तो वो आपको लेना है। जैसे मान लो ये चार्ज यहाँ से R1 डिस्टेंस पे है और ये चार्ज यहाँ पे R2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर, एंड E2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 द होल स्क्वायर। ओके, जो डिस्टेंस है वो आपको लेना है। ठीक है, और सिमिलरली अगर ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये अलोंग द लाइन एक्सिस, नाउ अब ये पॉइंट दोनों के बीच में कहीं भी हो, वो E1 माइनस E2 ही होता है या फिर E2 माइनस E1 ही होता है। अगर ये P पॉइंट इस तरफ हो किसी एक चार्ज के बाहर, तो ये Q2 है, ये Q1 है। ओके, सो Q1 से ये पॉइंट R1 डिस्टेंस पे है और Q2 से ये पॉइंट R2 डिस्टेंस पे है। करेक्ट, ओके। नाउ व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, नाउ Q2 Q1 बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से ये E1 रहेगा। ओके, क्योंकि Q1 पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे इसे बाहर की तरफ भी पॉइंट करेंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सेम रहेगा, दैट इज E2। अब दोनों वेक्टर देखो एक तरफ पॉइंट कर रहे हैं, देयरफॉर नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द व्हाट, E1 प्लस E2। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है, एंड E2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 द होल स्क्वायर। ओके, हाँ ये हो गया अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये क्या हुआ अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हाँ, और ये लाइन जॉइनिंग है, तो मैंने यहाँ पे एक बीच में एक लाइन डाल दी। ठीक है, और वो P पॉइंट अगर यहाँ पे, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस टू चार्जेस, सो Q1 Q2। ओके, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग, मतलब ये मान लो आपका E1 हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द लाइन जॉइनिंग, मतलब ये मान लो आपका E2 हो गया, उनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा, जो भी है, अगर ये हमने कंप्लीट किया तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। करेक्ट, ओके। हाँ, तो ये E1 है, E2 है, अब दोनों ना एक डायरेक्शन में है ना अपोजिट है। हाँ, तो यहाँ पे टोटल E इस तरफ होगा कहीं, तो टोटल E विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो हियर E नेट इज नथिंग बट द व्हाट, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा।
समझ में आ गया, ठीक है। और इवन जो भी ये डिस्टेंस, ये r1 है, ये r2 है, तो इवन क्या होगा 1/4πε0 q1 डिवाइड बाय r1 स्क्वायर एंड E2 इज इक्वल टू व्हाट 1/4πε0 q2 डिवाइड बाय r2 स्क्वायर। ओके, सो दैट इवन E2 यू हैव टू प्लेस इट हियर। ओके, डन। ओके, तो अब ध्यान रखो, ठीक है। अगर यही मान लो, अगर मैंने ये पॉजिटिव लिया, ठीक है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और अलोंग द लाइन जॉइनिंग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और वो जो P पॉइंट है सेंटर पे कहीं, तो ये P पॉइंट है। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस टू। ओके, अच्छा, तो क्या करना है, बस ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ठीक है। अलोंग द लाइन जॉइनिंग मतलब ये हो गया आपका E1, ठीक है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये लाइन जॉइनिंग, करेक्ट। ओके, इसके नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड होती है, इनवर्ड होती है, ये इनवर्ड होगी, ये इनवर्ड होती, तो ये मान लो E2 है, ये क्या है E2 है, करेक्ट। ओके, हाँ, तो ये E1 है, E2 है, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E यहीं पे कहीं तो होगा ना, करेक्ट। ओके, हाँ, तो ये अगर एंगल थीटा है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द व्हाट E1 स्क्वायर प्लस अगेन E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, 2E1 E2 कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, तो E1 क्या होता है, जैसे मान लो ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, सो E1 इज इक्वल टू व्हाट 1/4πε0 q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर एंड देन E2 इज इक्वल टू व्हाट 1/4πε0 q2 डिवाइड बाय R2 द होल स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। सुना, सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये कितना थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये 120 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पे थीटा 120 डिग्री लेना है। ओके, सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द E नेट एंड सिमिलरली डायरेक्शन कैन बी आल्सो फाइंड आउट बाय यूजिंग द व्हाट tan बीटा, सेम फॉर्मूला है, बस वहाँ पे फोर्स से डिलीट करते थे हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस आर द व्हाट सम डायग्राम्स यू हैव टू रिमेंबर कि किसी भी दो चार्जेस की भी वजह से या 3 चार्जेस की वजह से कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो जैसे मान लो यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव है और ये मान लो पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है, ठीक है, तो वो पॉइंट P यहाँ पे है, ठीक है। सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग, मतलब ये यहीं पे होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये यहीं पे होगा, ठीक है। सो ये हो गया E1, ये हो गया E2, उसके बीच में एंगल थीटा। सो E1 निकालो इसके वजह से बाय यूजिंग द R1, E2 निकालो बाय यूजिंग R2, करेक्ट। ओके, नाउ व्हेन यू सेपरेटली कैलकुलेट द E1 E2 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके, तो ये टोटल E यहाँ पे होगा, total electric field will be in this direction, so that can be calculated by under root of E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta. Okay, so this is how you have to calculate the resultant electric field or the total electric field due to a multiple charges. Okay, तो इसके बारे में हम एग्जांपल्स वगैरह हम कल सॉल्व करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दो, जो हमने कूलम्स लॉ में यूज़ किया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सिमिलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड। बहुत सारे डायग्राम्स रहेंगे, किसी भी मल्टीपल चार्जेस रहेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस अलोंग द लाइन जॉइनिंग ड्रॉ करो, ठीक है। तो आपको वेक्टर्स मिलेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करो, अगर ऐसे कुछ एंगल बना रहे हैं तो आपको ये रिजल्टेंट वाला इक्वेशन लेना पड़ेगा। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू दोज न्यूमेरिकल पार्ट टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.